Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 25, Religion in Tribal Societies of Society in India. Topics to be covered are chief characteristics of tribal societies, tribal lifestyle, tribal ritual complex, tribal worldview, impact of another religious belief system, सोशो-रिलीजियस मूवमेंट्स। सो बेसिकली इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ट्राइबल सोसाइटी होती हैं उसमें किस टाइप का रिलीजियस होता है, वो कौन से भगवान को मानते हैं, कैसे उनमें पूजा होती है। सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। एवरी रिलीजियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट: belief in the existence of superhuman world, human relationship to it, practice of ritual as an instrument of establishing relationship. So जो हर एक रिलीजन होता है 3 मेन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक लोग एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात करते हैं, बिलीव करते हैं, भगवान के को मानते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा है एंड और रिचुअल कैसे हैं। So religion of tribal is simple in so far as it is expressed in everyday language and experienced in everyday life. It is descriptive, demonstrative and readily discernible. Among the tribal religious myth, belief, religious value and religious action are not treated as something apart from another kinds of beliefs and behavior as followed in social, economic and political context. So tribals की lifestyle कैसे होती है? So religion prevents all accept of tribal life. That is why for understanding the tribal lifestyle we need to first understand the tribal religious notation. By their own account, the Toda and their long-horned buffaloes were created on high massif of Nilgiri hills by great goddess तिराजगी। बेसिकली इसमें बताया गया है कि उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ने से पहले हमें उनके रिलीजियस को जानना बहुत ज़रूरी है। जो टोडा लोग होते हैं वो बफेलोस को, जिनके बड़े बड़े सिंग होते हैं, उनको पूछते हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं। देयर सेटलमेंट इज मार्क्ड बाय अ यूनिक बैरल वेल्टेड horses and daily building. The डेयरी बिल्डिंग आर टेम्पल, वो डेयरी बिल्डिंग बनाते हैं जिनको वो टेम्पल का नाम देते हैं। सो द टोटा आर सोशली ऑर्गेनाइज इनटू 2 एंडोगेमस सेशन नेम्ड टैर्थोरल एंड टेविवेलियोल। द डिवीजन इज बेस्ड अपॉन रिचुअल स्पेसिफिकेशन। उनकी 2 टाइप से डिवीजन कर दी गई है। जो इनकी डिवीजन है वो टोटली रिचुअल सेशन के ऊपर बेस्ड होती है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ट्राइबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं। सो द टोडा ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ स्पेशल सेरेमनीज रिलेटेड टू डेयरीज, द बफेलोज एंड द पोस्चर्स। देयर आर राइट्स बाय विच दे होर द डेली purify it when it has been defiled and make offering to it. There are rites associated with rebuilding and rethinking. Tribal ritual complex. So for a religious human, the superhuman world is the real world which is ritually replicated in space and time. The believer communicate with the world through the symbolic code which Saraswati calls the ritual language, consisting of historic word, mantra, gesture, mandra, sound, dhvani, everybody language of interaction. सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो रिलीजियस होता है उसमें हम लोग एक सुपर ह्यूमन की बात करते हैं जिसको हम लोग गॉड का नाम देते हैं। जो 2 बिलीवर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद वर्ड्स थ्रू सिंबॉलिक कोड के साथ वो अनदर वर्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं जो बिलीवर होते हैं उनके। सो जो
they calls upon some languages like मंत्रा, मंत्र होते हैं, मुद्रा, ध्वनि, everyday language of interaction. So in tribal prescription, the space is filled with ritual beings. There are two classes of space, cosmic space and physical or object space. Basically उसमें two क्लासेस के स्पेस बनाए गए हैं. एक है हमारे पास कॉस्मिक स्पेस एंड अनदर वन इज अवर ऑब्जेक्ट स्पेस. सो द संतल बिलीव दैट द क्रिएटर ठाकुर जी डिविल्स अपॉन इन द स्काई द सन बोंगा और सन गॉड also occupies the cosmic space. There is also the Hanapuri or the Lord of Death. बेसिकली यहाँ पे जो संतल बिलीव करते हैं क्रिएटर में, जिसको ठाकुर जी का नाम देते हैं, सिन बोंगा और सन गॉड ऑल्सो ऑक्यूपाई द कॉस्मिक स्पेस. जो पाप और पुण्य का कर्म का ध्यान रखते हैं वो कॉस्मिक स्पेस में आते हैं. देयर इज ऑल्सो ए हानापुरी और द लैंड ऑफ डेथ. वहां पे एक लैंड ऑफ डेथ में भी बिलीव करते हैं. सो द रिचुअल स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्पेस. जो रिचुअल स्पेस होता है वो डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी स्पेस का, इन एज मच एज इट इज केयर्ड इफेक्टिव. But an ordinary space can become a ritual space depending upon its association with the spirit. Generally, it is allowed to retain its natural form. So, देखिए जो रिचुअल स्पेसिस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी स्पेसिस से, और जो ऑर्डिनरी स्पेस होते हैं उनको रिचुअल स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द एसोसिएशन विद स्पिरिट, वो कितने स्पिरिट से उसको करना चाहते हैं. नाउ रिचुअल टाइम की बात करते हैं. द ट्राइब्स ऑर्डर देयर रिचुअल टाइम ऑन नेचर सिग्नल ऑन द blossoming plant and trees, on the position of stars and moon, the biological time and its circumstances so depend by direct divination. So basically जो ट्राइब ऑर्डर रिचुअल टाइम होता है वो नेचुरल सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक सुबह का टाइम ब्लॉसमिंग प्लांट एंड ट्रीज, और द पोजीशन ऑफ स्टार एंड मून कैसी है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. द प्रिंसिपल ऑफ फेस्टिवल ऑफ ओराओन इज कॉल्ड सरहुल. सो जो प्रिंसिपल ऑफ फेस्टिवल है उनको हम सरहुल बोलते हैं. द फीस्ट ऑफ सेल ब्लॉसम्स ऑल्सो नोन एज मैरिज ऑन द अर्थ. सो द टोडा perform their rituals according to the position of star and new moon. जो टोडा है अपने रिचुअल को सेलिब्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ स्टार एंड मून. द स्टार कॉल्ड किट, द 18 नक्षत्रा और नूरा मानसेन is considered to have malignant influence. Most rituals are performed on about new moon. The moon time is allowed rather strictly. जो जितने भी इनके फेस्टिवल होते हैं मोस्टली न्यू मून टाइम पे आते हैं, जब मून जो है वापस से आने लगता है अंधेरों से उजालों की तरफ, तब वहां पे उनके मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. सो द मून टाइम इज फॉलोड रादर स्ट्रिक्टली. जो मून टाइम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. सो रिचुअल लैंग्वेज की बात करते हैं. सो मंत्रा, मुद्रा, ध्वनि और व्याहकिरी. So the complex form of religion such as in Vedic and Tantric tradition, the constellation of mantra is fully developed. The Vedic mantra is considered as primordial word for which neither human nor God is the author. It is not even the message of God, it is God itself. बेसिकली जब हम मंत्रा की बात करते हैं, मंत्रा जो है बहुत पुराना हम लैंग्वेज की बात करते हैं जो जिसको जनरली गॉड की तरह कंसीडर किया जाता है.
So mantra is that letter or combination of letter which evokes the deity. The mantra used the tribes in performance of ritual or simple words everyday language. This mantra may appear as prayer for the Kera priest offer a sacrifice to spirit which is return is asked to reciprocate. बेसिकली मंत्रा जो है उनके लिए एक बहुत ही पुण्य वर्ड की तरह काम करता है. वो इसको यूज करते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स के अंदर. मुद्रा. There is various kind of hand gesture and body position representing specific feeling, gestural actions in tribal dance. The movement of steps, interlocking of hands and another hand gesture have both artistic and ritualistic significance. जो मंत्रा होता है ये बेसिकली हैंड जेस्चर है. स्पेसिफिक पोजीशन में किस टाइप का जो जेस्चर होना चाहिए, किस टाइप की पोजीशन होनी चाहिए, हाथों की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट आवर फीलिंग, कि वो अच्छी तरह से हमारी फीलिंग को भी रिप्रेजेंट कर पाए. नाउ धावनी. साउंड इज द थर्ड. जो ध्वनि होती है वो थर्ड हमारे कंपोनेंट है रिचुअल लैंग्वेजेस का. द साउंड ऑफ म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट्स गाइड द डांस मंत्रा. जो अब ध्वनि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ध्वनि से ही जो हमारा मंत्रा होता था, मुद्रा दिखाते थे जिसमें हम लोग वो मुद्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उन्हीं बीट्स के ऊपर, उन्हीं ध्वनि के ऊपर लोग अपना डांस जो है प्रस्तुत करते हैं, जो भगवान को डिवोट करते हैं. सो द संतुल प्रोड्यूस पेक्युलर साउंड एट द एनुअल हंट. दे शाउट डेर डेर, डिपर डिपर ड्यूरिंग द बितलाहा डांस. वो डांस करते हैं जिसमें वो कुछ साउंड को प्रोनाउंस करते हैं. नाउ ऑफ कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल व्हाट फॉलोज इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रूमेंट थ्रू methods and behavior is called Viveshkari Reiki. The following description of making offering of Toda daily will be good installation. All Toda dairies must be kept in state of high ritual purities. Tribal worldview. So, evolutionary anthropologists of last century held that the primitive man's mental equipment is very different from that of civilized man. The primitive lack of differentiation in their worldview does not necessarily prove that they are intelligently incapable to reasoning and interpretation. Thirdly, the development of religion system cannot be established by finding the correction between the social and philosophical, psychological needs and degree of religious articulation. Lastly, so-called primitive societies make no difference between the technical order and in spiritual order, and hence in their case the consideration of social and psychological factor influencing the religious level is totally irrelevant. Simple belief of tribal. So Saraswati's exploration and analysis of tribal myth of Northeast India has led him to say that in the Arctic vision, human, cosmos and supernatural are not separate realistics but are related and closely communicable to the extent that the land of death is archetype
of land of living. बेसिकली जो सरस्वती एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग और एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो ट्राइबल की जो मिथ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन कॉस्मिक सुपरनेचुरल आर नॉट सेपरेटली रियलिस्टिक बट आर रिलेटेड, वो अलग अलग नहीं है, वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है. सो फ्यूअर Hermendorf, describing the event of earthquake in Konyak Naga village, addresses himself to the problem of tribal mind. So, what is Konyak ideas of natural phenomena that sometimes threaten his life and his property? The answer given by Fuhrer Hermendorf is that the Konyak Nanga man is not a primitive living in mortal fear of unknown. बेसिकली यहाँ पे एक जो फ्यूअर हर्मैंडोफ थे जिन्होंने 1962 में ट्राइबल पीपल के बारे में रिसर्च किया, वो देखना चाहते कि जब नेचुरल इवेंट आते हैं लाइक कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ भूकंप तूफान आता है, तो जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जो कोनाक आइडियाज क्या रहता था. सो द आंसर गिवन बाय फ्यूअर हर्मैंडोफ इज दैट द कोनाक नांगा मैन इज नॉट अ प्रिमिटिव लिविंग इन मॉर्टल फियर ऑफ अननोन. तो वो बिलीव नहीं करते थे मॉर्टल फियर ऑफ अननोन में. सो हियर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ अनदर analyst. Now, in early evolutionary study of religious phenomenon in Taroyan and Morgan and Pharisaian style was replaced by structure functionalist approach initialized by Malin Oswicki and Detlef Brown. During the last few years, there has been greater sophistication in understanding the structure and meaning of primitive belief system, largely in terms of their symbol significance, owing much to Kennedy, Levi Strauss, and Chilford Geertz. नाउ हिंदुइज्म एंड ट्राइबल रिलीजन. यहाँ पे हिंदुइज्म और ट्राइबल रिलीजन के बारे में बताया गया है. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर इज अनदर. जो हिंदू लोग हैं वो कर्मा धर्मा में बिलीव करते हैं. सिमिलरली जो ट्राइबल लोग हैं वो भी कर्म धर्म में बिलीव करते हैं. सो द Bengali of West Bengal has adopted and assimilated the element of local beliefs and practices of Hindus. Christianity and tribal religion. Christianity और tribal religion में क्या similarity है, उनमें कैसा रहता है. So, beginning with the conversation of Khalsi of Assam in 1813, the Orain of Chittor Nangapur in Chota Nagpur in 1850 and the Bhils of Madhya Pradesh in 1860 by Christian missionaries. Christianity has brought about many changes in cultural life for tribes in India. बेसिकली अब ट्राइब्स इंडिया में रहते थे, जब क्रिश्चियन लोग आए उन्होंने अपना कल्चर को डिफाइन करने लगा. तो मध्य प्रदेश के में आए तो वहाँ के जो भील्स थे उनके कल्चर में कुछ ना चेंज आने लगा, वो अडॉप्ट करने लगे क्रिश्चियनिटी को. सो इन द मिडल इंडिया 2/3 ऑफ कलसी, 1/4 ऑफ मुंडा एंड 1/4 ऑफ ओरोन फॉलो क्रिश्चियनिटी. उसके बाद कुछ ट्राइबल लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया. दे आर सम स्टैटिकल डेटास. यहाँ पे कुछ आंकड़े भी दिए हैं. इन साउथ इंडिया हिल पुन्ना, जो साउथ इंडिया हिल की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास पुन्ना मिलते हैं. सो एंड जो उधर के जो केरला टाइप में जो हमारे पास ट्राइब मिलते हैं वहां पे नियरली 2/3 ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी. वहां पे नियर अबाउट वहां की 2/3 लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया.
So psycho-religious movements. So all over the world, psycho-religious movements have evoked in almost all religions. These range from cargo cults to millenary movements. The word millenary means literally 1,000 years and refers to belief that the world order is soon going to end, giving way to a new and perfect society. Now ताना भगत मूवमेंट, यहाँ पे खूब मूवमेंट आए जिसमें से एक ताना भगत मूवमेंट था. सो इन ताना भगत मूवमेंट, इन अनदर भगत मूवमेंट, an attempt is made to illuminate the way of life of Hindu higher caste. सो उन्होंने जो हिंदू की हायर कास्ट है उनकी अपने जो ट्राइबल पीपल है उनको भी एक प्लेस देने के लिए मूवमेंट चलाए थे, जिनका एक नाम में से एक था ताना भगत मूवमेंट. उन्होंने भी जो हिंदू की हायर कास्ट है उनमें अपना प्लेस दिलाने के लिए एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. सो द लीडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट वाज कॉल्ड जात्रा और गोन हु लिव्ड इन द विलेज. जो उनका लीडर था जिसका नाम था जात्रा और गन. फाइन, वो खुद भी एक सब डिवीजन से बिलोंग करता था, एक ट्राइबल पर्सन था. सो इन अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन वाज इन एक्सप्लक्शन ऑफ इविल स्पिरिट इम्पोर्ट फ्रॉम मुंडा एंड इनएक्टिवेट. उनका जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन था वो एक्सप्लोशन ऑफ इविल स्पिरिट इम्पोर्टेड फ्रॉम मुंडा, जो मुंडा से स्पिरिट आई थी उनको एलिमिनेट करना था. Here is another बिरसा मुंडा मूवमेंट. सेकेंड मूवमेंट था जो छोटा नागपुर में चला था. So here are some explanation of Birsa movement. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is what is ritual language, and my second question is what is tribe, prescription of man, animal and god. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, free learning.